subscribe this channel. ਹੈਲੋ एवरीवन, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮੈਥ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ। ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਦਾ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਆਈਟਮਸ ਅਮੰਗ ਦੈਮਸੈਲਵਸ ਅਰਾਊਂਡ ਐਨ ਐਵਰੇਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਕੀ ਰੈਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਰੈਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਆਈਟਮਸ। ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਈਟਮਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦਾ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਅਮੰਗੈਸਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਈਟਮਸ ਆਫ ਅ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੈਨ ਮੋਰ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਈਟਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਾਈਟਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਮੇਜ਼ਰ ਆਫ ਦਾ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਆਈਟਮਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਆਈਟਮਸ ਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮੈਥਡਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਥਡਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਰੇਂਜ, ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀ ਇੰਟਰ ਕੁਆਰਟਾਈਲ ਰੇਂਜ ਐਂਡ ਕੁਆਰਟਾਈਲ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ, ਥਰਡ ਹੈ ਮੀਨ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ, ਫੋਰਥ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ, ਫਿਫਥ ਹੈ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਿਕਸਥ ਹੈ ਲੋਰੈਂਜ ਕਰਵ। ਫਸਟ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ। ਰੇਂਜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਮੇਜ਼ਰ ਆਫ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਮੈਥਡ ਹੈ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਐਂਡ ਦਾ ਸਮੋਲੈਸਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਸੀਰੀਜ਼। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਰਜੈਸਟ ਵੈਲਿਊ ਅਤੇ ਸਮੋਲੈਸਟ ਵੈਲਿਊ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਲ ਮਾਈਨਸ ਐਸ। ਆਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਰੇਂਜ ਨੂੰ। ਐਲ ਕੀ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਲਾਰਜੈਸਟ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ। ਔਰ ਐਸ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦਾ ਸਮੋਲੈਸਟ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਰ ਹੈ ਉਹ ਆਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੈ? ਲਾਰਜੈਸਟ ਵੈਲਿਊ ਮਾਈਨਸ smallest value. So एक अदर formula is the coefficient of range. Range ਦਾ coefficient ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? L minus S divide by L plus S. ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਰਜੈਸਟ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ ਸਮੋਲੈਸਟ ਵੈਲਿਊ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਲਾਰਜੈਸਟ ਵੈਲਿਊ ਪਲੱਸ ਸਮੋਲੈਸਟ ਵੈਲਿਊ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਟੂ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਲ ਮਾਈਨਸ ਐਸ ਜੋ ਕਿ ਰੇਂਜ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਰੇਂਜ ਜੋ ਹੈ ਐਲ ਮਾਈਨਸ ਐਸ ਔਰ ਐਲ ਪਲੱਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਰਮਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਟਾਈਪਸ ਦੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੀਰੀਜ਼, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਸਕਰੀਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਔਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਸੀਰੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁਣ 10 15 30 40 45 25। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੇਂਜ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰੇਂਜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਲਾਰਜੈਸਟ ਵੈਲਿਊ ਮਾਈਨਸ ਸਮੋਲੈਸਟ ਵੈਲਿਊ। ਹੁਣ ਲਾਰਜੈਸਟ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਰਜੈਸਟ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ 45। 45 ਮਾਈਨਸ ਸਮੋਲੈਸਟ ਵੈਲਿਊ ਕੌਣ ਸੀ ਹੈ? 10। 45 ਮਾਈਨਸ 10 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 35। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਜੋ ਕਿ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਰੇਂਜ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ रेंज। कादे इक्वल आएगा? ये आएगा L माइनस एस डिवाइड बाय L प्लस एस, मतलब कि 45 माइनस 10, 45 प्लस द 10, ऊपर आया 35, नीचे आया 55। तो इनू तुसी डिवाइड करके अपना आंसर कट सकते हो। ठीक है, 7 5 ज़ार 35, 11 5 ज़ार 55। ठीक है, कितना आंसर आ गया? 0.63। अप टू सो ऑन। ठीक है, ठीक है, नैक्सट है डिस्क्रीट सीरीज़। डिस्क्रीट सीरीज़ के की होंगे जो आपको एक्स दी वैल्यूज़ दित्तियां हो, नीचे आपको फ्रीकुएंसी दी हो। ठीक है, नॉर्मल ऊपर कोई भी मार्क्स हो, नीचे उन्होंने आपको फ्रीकुएंसी दी हो, वो की होंगे डिस्क्रीट सीरीज़। यदी रेंज किमें फाइंड आउट करनी है? ये सिर्फ आप मार्क्स वाली लाइन देखनी होंगी है, ना कि फ्रीकुएंसी वाली लाइन। ठीक है, हम लारजेस्ट वैल्यू मार्क्स वाली एक्स वाली लाइन चो लारजेस्ट वैल्यू कितनी है? 70 और स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है? 10। सो 70 माइनस 10 इक्वल टू 60। सेम कोफिशिएंट ऑफ रेंज, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू। 70 माइनस 10, 70 प्लस 10, 60 डिवाइड बाई 80, 0.75 जो कि अपने को आंसर। एक थर्ड सीरीज़ होंगी है जिन्हों कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ किया जाता है। कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ के जो आपको इंटरवल्स दिते हो 0 10 10 to 20
20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, वैल्यूज़ ऑन 1 2 5 8 9। तो ये आप स्मॉलेस्ट वैल्यू और लार्जेस्ट वैल्यू की देखने हो, आप देखनी है इंटरवल्स वाली लाइन चो। लार्जेस्ट वैल्यू 50, स्मॉलेस्ट वैल्यू 0, ठीक है। 50 माइनस 0 इक्वल टू 50, एक ही आ गया अपने को रेंज, ठीक है। ये सी अपने को रेंज कढ़न का फॉर्मूला, पर रेंज किमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। नैक्सट हैगी अपनी सैकेंड टाइप है इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। इंटर क्वार्टाइल रेंज की होंगी है इज़ द डिफरेंस बिटवीन द अपर क्वार्टाइल एंड द लोअर क्वार्टाइल, जिन्होंने Q3 और Q1 भी कहा जाता है, ठीक है। ये जिमें ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लोअर वैल्यू लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू सी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ इंटर क्वार्टाइल का Q3 माइनस Q1, ठीक है। और एक जो क्वार्टाइल डेविएशन है वो होंगी है हाफ ऑफ द इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है। ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਮੀ इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहा जाता है, मतलब कि जी इंटर क्वार्टाइल रेंज होंगी है उन्होंने जो आप 2 ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड कर दें तो अपने को की आ जाती है क्वार्टाइल डेविएशन। और ये सेम कॉफिशेंट की होंगे क्वार्टाइल डेविएशन का, सेम होंगे वो L माइनस एस सी, Q3 माइनस Q1, Q3 प्लस Q1, ओके। इन्हें 3 फॉर्मूलेस। हुण ये एक नवी चीज़ देखिए क्वार्टाइल। क्वार्टाइल की होंगे ने, क्वार्टाइल का मतलब है भी जिवें हुण कोई भी अपने को लाइन है, ठीक है। ये मान लो अपने को 100% डेटा है, ठीक है। डेटा मान लो जो कुछ भी मान लो अपने को कोई भी डेटा है वो 100% डेटा है, उन्होंने की कर दो 3 हिस्सों के जो 4 हिस्सों के डिवाइड होएगा 1 2 3 4, ठीक है। ये होंगे Q1 Q2 Q3 एंड Q4, ठीक है। सो आप ये यूज़ करना है Q1 एंड Q3, मतलब कि फर्स्ट हिस्सा और थर्ड हिस्सा, ठीक है। ये भी सेम आप करांगे इंडिविजुअल सीरीज लिए अलग, डिस्क्रीटली अलग और कॉन्टीन्यूअस सीरीज लिए अलग तो फार्मूला, ठीक है। सब तो पहला अपने को इंडिविजुअल सीरीज है, कोई भी सीरीज दी हुई अपने 28 18 20 24 27 30 एंड 15, ठीक है। सब तो पहला अपन की करांगे जो इंडिविजुअल सीरीज होंगी है तो आप सब तो पहला इनू की करांगे अरेंज करांगे असेंडिंग ऑर्डर के विच। असेंडिंग ऑर्डर च लिखा 15 18 20 24 27 28 30, ठीक है। ये Q1 की होएगा, Q1 कढ़न का फॉर्मूला होंगे जो भी अपने को इंडिविजुअल सीरीज दी हो तो आप की करेंगे n+1 डिवाइड बाय 4। 4 क्यों लिया, क्योंकि ये 4 क्वार्टाइल्स होंगे, ठीक है। n वैल्यू की आ गई, n की आ गई इन्हों की काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैल्यूज़ ने। 7+1 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 8/4 इक्वल टू 2। Q1 की वैल्यू की आ गई 2, मतलब कि 2 का मतलब की है सैकेंड आइटम। ये लाइन के सैकेंड आइटम कि है 18, 18 हो गई अपने को Q1। सेम Q3 के की है क्योंकि 3 थर्ड क्वार्टाइल है तो आप जो ए वाला सी Q1 की वैल्यू से इनू की कर देंगे 3 के नाल मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो अपने को आंसर आ गया 6th आइटम की है 28। सो Q3 की हो गया अपने को 28, ठीक है। नाउ वी विल फाइंड द इंटर क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। इंटर क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला की होंगे Q3 माइनस Q1। Q3 की वैल्यू कितनी है 28 माइनस 18 इक्वल टू 10 आ गया आंसर अपने को इंटर क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। हम सेम क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला की सी उन्होंने आप की कर देना 2 नाल डिवाइड, मतलब कि 10 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू, मतलब कि 10 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 5। कॉफिशेंट ऑफ क्वार्टाइल, ठीक है। डेविएशन ये Q3 माइनस Q1 Q3 प्लस Q1, 28 माइनस 18 28 प्लस 18, 10 डिवाइड बाय 46 इक्वल टू 0.217। ये आ गया अपने को आंसर इंडिविजुअल सीरीज तो, ठीक है। हुण अपने को की है जो डिस्क्रीट सीरीज दी हो, जो डिस्क्रीट सीरीज दी हो तो आप आंसर किमें करना है, ठीक है। अपने को डिस्क्रीट सीरीज क्या मार्क्स दिते हुए हैं, फ्रीकुएंसी दी है, 2 चीज़ आपको हमेशा दित्तियां होंगे, ठीक है। सब तो पहला तो आप जी फ्रीकुएंसी है उन्होंने की करा आप प्लस कर लाँगे, उत्थों अपने को n की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उस तो आप की करना होंगे कम्यूलेटिव फ्रीकुएंसी फाइंड आउट करनी होंगी है। कम्यूलेटिव फ्रीकुएंसी की होंगी है आप लास्ट टाइम किया सी ना मीन मीडियन मोड के तुहानूं याद होएगा, वो आप कम्यूलेटिव फ्रीकुएंसी कड्ढी सी 4 4 + 7 11 11 + 15 26 26 + 8 34 34 + 7 41 41 + 2 43, ठीक है। हमेशा याद रखो भी जी कम्यूलेटिव फ्रीकुएंसी की लास्ट वैल्यू होंगी है उही ही n की वैल्यू होएगी, सेम होगी आपस के, ठीक है। हम अपने को 3 फार्मूला सी इंटर क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1, क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2, कोफिशिएंट ऑफ
क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, हम Q1 की वैल्यू आप सेम लास्ट वाला फॉर्मूला लाना n+1/4 इक्वल टू 43। ये n की वैल्यू आप लवेंगे ए वाली, वो आप काउंटिंग ली सी, ये आप लैनी n की वैल्यू फ्रीकुएंसी का प्लस। ठीक है, आंसर आ गया 11। हम 11 आप फाइंड आउट करना है ये n की वैल्यू फ्रीकुएंसी का प्लस। ठीक है, आंसर आ गया 11। हम 11 आप फाइंड आउट करना है ये। ठीक है, ये 11 हैगा एरिया। ठीक है, ये की हो गया Q1 की वैल्यू। ठीक है, उस तो बाद Q3 के आप 3 नाल मल्टीप्लाई करांगे, सेम 3 नाल मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 33। 33 ये हैगा नहीं हैगा तो वो तो आप एक मतलब कि ग्रेटर लैनी होंगे वैल्यू तो उस तो बाद कि 33 तो बाद आती है 34। ठीक है, मतलब कि इन्हों के सामने वाले जोड़े एक्स दी वैल्यूज़ ने वो की होणगियां वैल्यूज़ होणगियां Q1 एंड Q3। ठीक है, Q1 एंड Q3। ठीक है, सेम फार्मूला ला के आप फार्मूले इन्होंने पुट कर दो 40 - 20 इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 10 प्लस माइनस करके आंसर आ गया ये वाला। ठीक है, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸੀਰੀਜ਼ मतलब कि ਇੰਟਰਵਲਸ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਐਵੇਂ ਏਜ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰਸਨਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਕਮੂਲੇਟਿਵ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸੇਮ प्लस करके। ठीक है, वैल्यूज़ ਨੂੰ n की वैल्यू ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ Q1 की वैल्यू ਆਪਾਂ लास्ट टाइम ਕੀਤਾ ਸੀ n+1 डिवाइड बाई 4, पर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਾਂਗੇ n डिवाइड बाई 4। n कितनी 60, 60 डिवाइड बाई 4 15। ठीक है, उस तो बाद Q1 तो फॉर्मूला लगावांगे आप, क्योंकि हुण देखो 15 आ गया। 15 ये चैक करो, 15 तो वड्डा की है अपने को 29। 29 की जी मतलब कि एक्स वाली वैल्यू करिए 40 एंड 60। अपने को परफेक्ट वैल्यू तो नहीं हैगी, आप कि सिलेक्ट करिए। सो आपको ये फॉर्मूला लगाना पेगा L1 + n डिवाइड बाई 4 - CF डिवाइड बाई F मल्टीप्लाई I। ठीक है, हुण L1 इत्थे की होएगा, L1 होएगा जी ये टर्म आई है अपने को, ये जी लोअर वैल्यू है मतलब कि 40 प्लस n डिवाइड बाई 4 आप कढ़ लिया 15 और CF कम्यूलेटिव फ्रीकुएंसी होएगी जी मतलब कि हुण 15 आया सी, 15 वाली वैल्यू ए वाली आ गई। ठीक है, तो ये तो जी उपर वाली वैल्यू होएगी वो ली जाएगी कम्यूलेटिव फ्रीकुएंसी के तौर पर। फ्रीकुएंसी 29 की फ्रीकुएंसी की है 15, 15 इत्थे मल्टीप्लाई आई की हुंदा इन्हां दा इंटरवल भी कितना इन्हां च कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, 20 इनू सॉल्व करके अपना आंसर आ गया 41.33। ठीक है, सेम आप Q3 करना है, लास्ट टाइम भी आप 3 नाल मल्टीप्लाई करते होंगे सी इनू। ठीक है, इत्थे भी 3 नाल मल्टीप्लाई करके अपने को 45, 45 चेक करो है नहीं, करके अपने को 45, 45 चेक करो है नहीं, तो 45 तो ग्रेटर की है 49, 49 के सामने वाला इंटरवल ए। ठीक है, तो L1 की वैल्यू सेम फार्मूला लगाना है, जिथे n/4 से 3 मल्टीप्लाई n/4 आएगा। L1 की वैल्यू लोअर टर्म 60। ठीक है, प्लस 45 माइनस CF कितना आ गया 49 तो उपर कितना 29 डिवाइड बाय फ्रीकुएंसी कितनी है ये सामने वाली 20 मल्टीप्लाई 20, 20 नाल 20 कैंसल हो गया, अपने को आंसर आ गया 76। Q1 की वैल्यू कितनी आ गई 41.33, Q3 की वैल्यू आ गया अपने को 76। सो ये तो आप फॉर्मूला लगा के अपने आंसरस कर लाँगे। ठीक है, इन क्वार्टाइल इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, तो क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, इतने अपन दो टाइप्स हो गई रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन। बाकी दी टाइप्स अपन नैक्सट वीडियो करांगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।